Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with the beautiful video for you in the series of English grammar. The course we have started, I think, before 1 month ago. Now is on the peak. We are continuously going to be complete chapter one by one, and we have completed the chapter first of English grammar, the basic English grammar course which we have started, and now the next chapter article we already started, and this is the next video for the article. We have already completed what is the article, means of article, and how we can use a and n. Now the next point that we have to discuss, you well known here, that we have to discuss uses of the. In this we are going to use the, how we have to learn the, how the become specify. Now in this video, this is really gonna be beautiful video for you, your each and every concept which you always try to hawks in your mind in that. So don't worry in that, I am here. I clear each and every point which has create a problem related to the article the in your mind. So let's get started our video without any waste of time, with a beautiful vibe. Okay, so let's get started. As you can see on your screen, we are going to know about article the. Today we discuss about it in a crystal clear manner. And if you are new to here, so let me tell you that we have already completed the use of a and n. Okay, we have already completed the use of a and now this is use of the very first concept we have to learn. The is used before the SCN. SCN, what is the means of SCN? You know very well, I have already told you. If you are continue to my channel, then you already know it. What is SCN? SCN means to say singular, common, singular, countable, and this is stand for noun. So singular countable noun means to say article the is used with the singular countable noun, and we have already know sorry, we have already know that article the is also not only article the and an, both all are three article, you can say, used for SCN. So we have already know in the previous video a and the, all these three are used with singular countable noun, but these are according to the sound. Okay, we have already learned it according to the sound, and this is for the particular manner. So article the is used with the, मैंने ये बताया था, देखिए मैं फिर से बता दूं कि मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताया था, और जिसमें मैंने बताया था कि ए और एन जो हमारा होता है ए एन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखा है, अगर आप नए हैं तो जाके उसको देख लें, बहुत प्यारा कंसेप्ट हो जाएगा ताकि आपको ये समझ में अच्छा है। अदरवाइज दा अकेला देखना है तो पूरा समझ लीजिए, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि दा को दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपका ए एन दा तीनों ही आते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट यही लिखा है। ए एन कब आता है? जब आपका साउंड हो सॉरी, आपका जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए आता है, वोवेल साउंड होगा तो एन आता है, जानना है तो पिछला वीडियो देख लें। और द आपका नॉर्मली आता है। इफ इट इज रेफरिंग टू द स्पेसिफिक और मेक इट पर्टिकुलर, देन यू हैव टू यूज आर्टिकल द फॉर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट स्टैंड फॉर। द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, तो हमारा जो द आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गर्ल इज रीडिंग। अब देखिए गर्ल क्या है। गर्ल आपका सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि नाउन है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया था नाउन के समय आर्टिकल कहीं आता नहीं है। हाँ, गर्ल नाउन है, इमेज बनती है नाउन है। ओके, जिस चीज की इमेज बने वही नाउन है, दैट्स ओके। इफ इट इज क्रिएटिंग इमेज, दिस इज नाउन, एंड इफ इट इज नाउन एंड इट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गर्ल इज अ सिंगुलर, इट इज काउंटेबल बिकॉज इट इज वन, सो यू कैन से वी हैव टू पुट आउट हियर आर्टिकल द। नाउ इट इज राइट, द गर्ल इज रीडिंग। क्लियर, यहाँ पे ए भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बता रहा हूं तो इसलिए द गर्ल आ गया, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं कि सर अब आपने बोला ए आ सकता था कैसे, तो जाइए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने डेफिनेट बता दिया इसलिए द।
अब यहाँ पे इसी प्रकार से द बॉय आना चाहिए था, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ए भी आ सकता था। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप कह सकते हो ए, और अगर पता है उसके बारे में डेफिनेट है तो दा कह सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इफ द वर्ड इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन देन यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज टेक आर्टिकल द बिफोर इट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। लेट मी इरेज दिस व्हाट वी हैव डन हियर, रफ वर्क। ओके, चलिए। Now the second concept, okay, first of all you have to remember we are not here to learn the rules, we have to understand the concept. What is the concept of the? If you really get the point what I'm here right now teaching over here, you definitely going to learn the. There's a lots of the things in the we study in two chapter, in two video in different manner. I'll discuss each and every point, but you have to specifically focus on the one point, that the is specifically used for the particular things. How, sir? So let me tell you, the second concept is normally नॉट द प्लस पीसीएन। इसका मतलब क्या है सर, ये क्या है? इस देखिए मैंने ये बनाया, चाहता तो लिख देता, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल। लिख देखो, लिख लिया करो। मैंने बोला कि कॉपी और पेन उठाओ, अपने हाथ में रखिए और इसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये पूरा मैंने पहले भी बताया था, ऑनलाइन ये पहली क्लास होगी पीडीए क्लासेस पर, ये पहली आपकी चैनल होगी जहां पर आपको जीरो टू एडवांस बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रूल कंसेप्ट के काटे, क्योंकि कोई भी आपको इस प्रकार से नहीं बताने वाला है। देखिए पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आपका दा नहीं आता, यही लिखा है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है, जब भी मैं नॉर्मली की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है 90%। ठीक है सर, 90% प्लूरल काउंटेबल। अब देखो जब प्लूरल होगी चीज, प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसे, प्लूरल क्या होगा? देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मान लीजिए ये इतने सारे आपके बॉयज हैं, ठीक है, देखिए इतने सारे, देयर इज लॉट्स ऑफ द बॉयज ओवर हियर, और ये क्या बन जाएगा? प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे हैं, काउंटेबल 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, और नाउन ये है ही, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता ग्रामर का, तो मैं यहाँ पे हर चीज डिस्कस कर रहा हूं कि प्लूरल काउंटेबल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल क्या है, एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं उठा उठाकर, ताकि आपके दिमाग में वो इंजेक्शन डाल दूं, आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा पर्पज, आपका पर्पज यही है कि आप यहाँ आए हो कि आपको कुछ समझ में आना चाहिए। तो आपका आर्टिकल दा नहीं आता प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, 90% नहीं आता। कब? 90% नहीं आता, लेकिन 10% तो आता होगा सर। 90% जब नहीं आता तो 10% कब आता है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि 10% आपका कब आता है और 90% नहीं आता। देखिए लिखा है द कैट्स आर क्यूट एनिमल्स, लिखा हुआ है कैट्स। अब कैट्स क्या है? पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ द आया रॉन्ग, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट लिखा है आई लव रीडिंग द बुक्स। अरे तो बुक्स प्लूरल हो गया, पीसीएन, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, नॉर्मली है, नॉर्मल लिखा है, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, और ये पीसीएन है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और द आता है सिंगुलर के साथ, इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे दा लगाना गलत है आपका। नेक्स्ट लिखा था स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अरे भाई स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें भी कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा है, यहाँ पे भी ये क्या है आपका गलत है। देखो ध्यान देना, फोकस, मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि प्लूरल है, एस लगे हुए हैं, इनमें एस लगे हुए हैं, इसलिए दा नहीं आना। जब आपका व्हेन, फिर से सुनो ध्यान से, व्हेन एनी गिवन ऑफ द नाउन इज पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, then there is no article is used with it, neither a n nor the। क्लियर है ना? तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ना ए एन ना ही दा, इस चीज को दिमाग में आप डाल लो। अब 10% कब यूज होता है? चूंकि आप कॉम्पिटिटिव वाले हो, आप बैठे हुए हो, तो मैं बताता हूँ 10% कब यूज होता है। अगर कोई बच्चा आ गया हो 11, 9, 10th क्लास का, तो आपके लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, आपका आगे का बेस क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है, आपको भी समझ लेना चाहिए चीज। देखिए नोट लिखा है, अब ध्यान देना इस नोट पर, जो मैंने नोट में बताया हुआ है, अब इस नोट पर हमको ध्यान देना है। ओके, लिखा है व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्पेसिफिक, देन डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। अब सर देखिए ये वही 10% जो मैंने बताया, ध्यान से सुनिए। जब आपका प्लूरल पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन जब स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर बन जाए, जब उसकी पर्टिकुलर कोई मैनर में बात करे, अब ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर यही वो वर्ड है जो आपको सताएगा पूरे दा में। पर्टिकुलर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका प्लूरल है, प्लूरल नॉर्मल सेंस में बात होता है कि नॉर्मली जो काम होता है, नॉर्मली जो वर्ड होते हैं उनका कोई काम नॉर्मली हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट्स आर रीडिंग, देखिए
जैसे ये वाला सेंटेंस था, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये वाला सही था क्योंकि ये नॉर्मली बात कर रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। अब जब इसको स्पेसिफिकली बताए, इसी स्टूडेंट्स, इसी प्लूरल वर्ड को स्पेसिफिक टाइप में आपको क्लैरिफाई करे, तो फिर दा आएगा। सर कैसे स्पेसिफिक, समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं हूं ना, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, जस्ट सुनो ध्यान से। मैंने बताया जब किसी चीज की स्पेसिफिक बात करें, पर्टिकुलर के ये इतने सारे लोग हैं, प्लूरल हो और ये काम कर रहे हैं, तब दा आएगा। कैसे सर, देखिए एग्जांपल से समझाता हूं, अच्छा समझ में आएगा। सेम एग्जांपल को कंपेयर करना, लिखा था द कैट्स आर क्यूट एनिमल, कैट्स तो क्यूट होती हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं था इसलिए यहाँ पे दा नहीं आना था। अब यहाँ देखो, द कैट्स इन आवर नेबरहुड आर वेरी फ्रेंडली। अब ध्यान से सुनो, इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो, दोनों को कंपेयर करो, क्या फर्क नजर आ रहा है? क्या स्पेसिफिक बात कर रहा है इस सेंटेंस में कि सर आपने दा लगाया? और मैं बता दूं कि ये सेंटेंस आपका 101% करेक्ट है। ऐसा क्या है सर इसमें? लिखा है द कैट्स इन अवर नेबरहुड आर फ्रेंडली। जो हमारे नेबरहुड में, जो हमारे पड़ोस में, जो कैट्स हमारे पड़ोस में है वो बहुत फ्रेंडली है। सब कैट फ्रेंडली नहीं होती, लेकिन जो हमारे पड़ोस की कैट है, नेबरहुड की कैट है, वो बहुत फ्रेंडली है। तो क्या आप समझ में आया कि आपने उन कैट्स की बात करी, उन प्लूरल कैट्स की बात करी जो आपके नेबरहुड में वो बहुत फ्रेंडली है, वो अच्छी है, उनकी तारीफ करी, स्पेसिफाई कर दिया आपने उनको, पर्टिकुलरिटी बता दी आपने उनको, और इसी में आप आर्टिकल दा का यूज करते हो, और इसलिए ये राइट है। यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज करना अच्छा है। लेकिन यहाँ गलत क्यों था? कैट्स आर क्यूट एनिमल्स, बिकॉज क्यूट होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज बता नहीं रहा था। कहने का मतलब ये है, मैं और क्लियर करता हूँ, सुनिए, मैं और आपको इसको अच्छे से बता देता हूं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो दा है ना, ये आर्टिकल जो दा स्पेसिफिक कब आता है? जब आप किसी में कुछ उसमें एक्स्ट्रा लाइन डालकर उसकी बात करोगे, कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखा था कि कैट्स के अलावा नेबरहुड में जो हमारी कैट्स हैं वो फ्रेंडली है, ये एक्स्ट्रा लिखा होगा। और बताता हूँ ये नोट के बारे में। लिखा है नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब जरा इसको कंपेयर करो, इस वाले स्टूडेंट वाले क्वेश्चन को और इसको, बताओ क्या फर्क है? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, देखो स्टूडेंट का काम रीड करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दा नहीं आना था क्योंकि ये प्लूरल है, और जब नॉर्मली बात करता है तो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कोई अलग काम नहीं कर रहा था, कोई स्पेसिफाई काम नहीं कर रहा था, स्टूडेंट का पढ़ना के काम है इसलिए दा नहीं आना था। लेकिन यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अरे भाई, स्टूडेंट ये काम कब से करने लगे? वो सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल को नहीं मारते, वो जो स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल को मार रहे हैं, इसलिए यहां दा आया है। दैट्स वाई ये भी 101% राइट क्वेश्चन है आपका। बात आ गई समझ में? जो स्टूडेंट है ये रहे, ये इसलिए प्लूरल, पीसीएन प्लूरल होने के बावजूद भी, इसलिए मैंने लिखा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दा आता है जब स्पेसिफाई हो, लेकिन नॉर्मली नहीं आता। तो यहाँ पे स्पेसिफाई था कि स्टूडेंट प्रिंसिपल को मार रहे हैं, तभी आपका दा इसने लगाया है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, और भी बार बार इसकी बात करेंगे, आ जाएगा पूरी वीडियो में, और ये इतना अच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड, आई एम रीडिंग बुक्स ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। इसका आंसर मुझे बताओ, क्या ये सही है गलत? यहाँ पे बुक्स ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या यहाँ दा लगाना चाहिए या नहीं, या बिना दा लगाए ये सही है? जल्दी से बोलो, आपके पास टाइम। अब देखिए, मैंने बोला था अगर इतना सेंटेंस लिखा होगा आई एम रीडिंग बुक्स तो ये सही था, लेकिन एक्स्ट्रा लाइन लिखी है ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। वो कह रहा है मैं ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट, वो कह रहा है आई एम रीडिंग बुक्स, मैं उन किताबों को पढ़ रहा हूं जो बेस्ट सेलर लिस्ट पे टॉप पर हैं। यानी कि इसने स्पेसिफाई कर दिया और यहां दा नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है। यहां पर आपको बुक्स के साथ दा लगाना चाहिए था। इसलिए क्या बात आई समझ में? अगर मैं लिख देता, देखो ये लिखा हुआ था आई लव रीडिंग बुक्स। अब देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं था, बुक पढ़ना मैं पसंद करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिखी नहीं थी, उसकी बात कर नहीं रहा था, इसलिए यहाँ दा नहीं आता। अगर मैं लिख देता आई लव रीडिंग द बुक्स दैट माई फादर गिफ्ट मी, अब मैंने एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी, मैं उन किताबों को पढ़ना पसंद करता हूं जो कि मेरे पापा ने मुझको दी थी, तो फिर यहां पे सही होता दा, वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन। इसलिए स्पेसिफाई का मतलब होता है किसी भी प्रकार से आप स्पेसिफाई कर दो। होप यू गेट दिस आइडिया व्हाट वी हैव लर्न इन दीज टू कंसेप्ट एंड दिस इज रियली द अमेजिंग वन। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड होप यू विल एंजॉय इट। ओके, तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपका नॉर्मली मीन्स टू से 90%, वही कि 90% आपका जो दा होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता। मैंने फिर से बोला नॉर्मली, देखो सेम अब यही कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन था, अब वहां पे अनकाउंटेबल। नॉर्मली जो दा आर्टिकल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता, तो फिर
नॉर्मली 90%, लेकिन 10% तो सर होता होगा। यानी कि कब, जब उस नाउन को पर्टिकुलर बना दे, स्पेसिफाई कर दे, क्या बना दे, पर्टिकुलर बना दे, या फिर उसे स्पेसिफिक कर दे, क्या कर दे, स्पेसिफिक, तो फिर दा यूज हो जाएगा। लिख लेना ये सेम लाइन, ये सेम नोट उसमें लिख लेना, व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन लिख लेना, उसमें बोल रहा हूं लिख लो, अगर लिखना है उसी के नीचे कि दा कब आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन देन डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड। अब इसको भी समझाओ सर, स्पेसिफिक समझ, देखो आप समझ में आ गया होगा, अगर स्पेसिफिक ही समझ में आ गया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दा नहीं होता लेकिन स्पेसिफिक हो तो हो जाएगा, इसी प्रकार से अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता लेकिन वही अनकाउंटेबल नाउन की स्पेसिफिक बात करें तो हो जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन सर क्या होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये दो नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते या फिर जिनको आप गिन ना सको, ठीक है ना, तो वो आपके अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब एग्जांपल पे चलते हो, समझ में आ गया क्या है वो वाला कंसेप्ट। तो 10% तभी यूज होता है आपका आर्टिकल द अनकाउंटेबल के साथ जब वो पर्टिकुलरिटी बताएगा। लिखा है पहले द लव इज अ पावरफुल इमोशन। मुझे बताओ क्या इसमें कोई स्पेसिफिक बात कर रहा है? लिखा है द लव इज अ पावरफुल इमोशन। जो प्यार होता है ये बहुत पावरफुल आपका इमोशन है। तो यार नॉर्मली बात कर रहा है, नॉर्मली मैंने इसलिए टर्म में डाला है, और जब नॉर्मली बात करें लव पावरफुल इमोशन तो होते ही है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा बात कर ही नहीं रहा, तो लव के, और लव क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल जब नॉर्मली सेंस में यूज हो तो दा नहीं आता। बात आई समझ में मैंने क्या बोला? बड़े ध्यान से सुनना, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं बिल्कुल अच्छे से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। कुछ स्पेसिफाई करे तभी दा आएगा, यहां कुछ स्पेसिफाई नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा लाइन नहीं थी, इसलिए दा नहीं आना। लिखा है फ्रीडम इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। फ्रीडम भी आपका क्या, अनकाउंटेबल, ठीक है, फ्रीडम क्या है आपका अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखती नहीं है हमें फ्रीडम, लेकिन फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। बिल्कुल है, ये बात सत्य है, नॉर्मली ये बात सही है, और जो नॉर्मली बात सही हो तो उसमें दा नहीं आता, जब उसमें स्पेसिफाई कोई चीज होता आता है। यानी कि ये वाला आपका 100% राइट है, ये वाला आपका 101% करेक्ट सेंटेंस है, और जो पहले वाला सेंटेंस था ये गलत था। क्यों? यहाँ पे दा नहीं लगना है क्योंकि ये नॉर्मली बात कर रहा है। आगे द ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ नेचर। अब बताइए ग्रेविटी नेचर का फोर्स है कि नहीं? पहले ग्रेविटी अनकाउंटेबल है, हाँ सर ग्रेविटी दिखती नहीं है, ग्रेविटी दिखती नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, दैट्स ऑल। अब ग्रेविटी क्या नेचर का फोर्स है? अरे भाई नॉर्मली तो बात कर रहा है, बिल्कुल नेचर का फोर्स है, दा क्यों आएगा? इसलिए सेंटेंस गलत है। ध्यान रखना, मैंने कितना प्यारा दा का रूल बताया, स्पेसिफाई कर मतलब कि जो पर्टिकुलरिटी आपको दिखाता है जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो उसकी बात कर रहा हूं, एग्जांपल उन्हीं से बना बनाकर एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट वन लिखा है द वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब भाई बिल्कुल सही बात है, वाटर क्या अनकाउंटेबल है, ठीक है, वाटर आपकी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। अब इसमें स्पेसिफिक है क्या? कुछ नहीं, नॉर्मली बात है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत है। बात आ गई समझ में? सो देयर इज नथिंग टू बी स्पेसिफाई इन दीज सेंटेंसेस, सो दैट्स व्हाई द यूजिंग ऑफ आर्टिकल द is wrong. Okay, that's finished. Next, the water of this lake is polluted. Now you have to tell me what is the answer of this question. Is it right or wrong? Now जल्दी से मुझे बताइए ये right या wrong है? Obviously sir, this is 100% right because you are talking about the specific lake's water. यानी कि आप किसी लेक, किसी झील की, स्पेसिफिक कोई झील है उसकी बात आप कर रहे हो, उसके पानी की बात कर रहे हो कि वो पॉल्यूटेड है, इसलिए उस पानी में दा आया क्योंकि अब ये वाटर स्पेसिफिक हो गया, और अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी अब दा आया क्योंकि ये पर्टिकुलर बन गया। इस झील का पानी पॉल्यूटेड है, यूज मत करना, ठीक है, पॉल्यूटेड है, तो इसलिए उसमें लिखा म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द डोर, नेक्स्ट डोर इज टू लाउड। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है? जल्दी से बताओ, देखो आपके सामने मैंने एक्सरसाइज भी रखी है ताकि आप बता सको ये पर्टिकुलरिटी बताता कि नहीं। देखिए म्यूजिक क्या, अनकाउंटेबल नाउन, अब ये सोचना है इसके साथ दा आएगा कि नहीं आएगा। कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर इज टू लाउड, जो कि आपके बगल के दरवाजे से जो आवाज म्यूजिक की आ रही है वो बहुत तेज है यार, वो म्यूजिक जो बगल से आ रहा है, ध्यान दो मेरी बातों पर। यानी कि इस सेंटेंस में बता रहा है कि उस म्यूजिक की बात कर रहा है जो बगल से आ रहा है, स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया उस म्यूजिक को, इसलिए ये गलत है। यहां पर जब स्पेसिफिक हो गया तो यहां पे दा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हाँ या ना? समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, लिखा है द मिल्क इज व्हाइट, लिखा है द मिल्क इज व्हाइट। अब दा लगाना क्या मिल्क के साथ सही है जबकि ये अनकाउंटेबल नाउन है? अब बताओ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी दा नहीं आता। कब नहीं आता? जब नॉर्मली बात करे। अब भाई मिल्क तो व्हाइट ही होता है, ये नॉर्मली तो बात कर रहा है, दा नहीं आएगा, नॉर्मल बात में दा नहीं आता। बिल्कुल, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। अब देखिए
द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये जो दूध है ये गर्म है, इसको पीना मत, ये सही है, इसलिए इसके साथ दाएं, क्योंकि पर्टिकुलर है। कहीं पे आपने एक गिलास दूध रख दिया होगा, आपकी मम्मी आपके लिए रख गई होंगी, अभी ठंड का मौसम है, गरम गरम दूध रख गई होंगी, बोला होगा बेटा ये दूध गर्म है, इसको पीना मत, यानी कि वो दूध, देखिए जो कि हम मिल्किंग करते हैं तो सब तो जितना भी मिल्क होता है वो तो होता नहीं कि गर्म हो, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया उस गिलास का जो दूध है, तो द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, यानी कि इसके बारे में कुछ बात कर दी, इस मिल्क के बारे में स्पेसिफाई कर दिया, और मिल्क तो व्हाइट होता है इसलिए गलत था, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा था, तो पर्टिकुलरली कुछ बात करें। अब बताइए, लव अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान देना, लव ऑफ राधा एंड कृष्णा वाज अमेजिंग। अब यहां पर दा आएगा कि नहीं, अब मैं ये आप पर छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। अरे सर, क्योंकि राधा और कृष्णा के प्यार की बात कर रहा है, स्पेसिफाई कर दिया राधा और कृष्णा का प्यार बहुत अमेजिंग था, इसलिए सर ये गलत है। यहां पर अगर सही करना है आपको तो फिर आप क्या लगा दो, दा लगा दो, तो आपका सही हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि इसने स्पेसिफाई करके बात कर रहा था कि द लव ऑफ राधा कृष्णा, ये लगाना चाहिए, तब सही है। अब लव इज ग्रेट तो होता ही है, द लव इज ग्रेट नहीं बोल सकते, जैसे मैं लिख दूं द लव इज ग्रेट, अरे भाई प्यार महान तो होता ही है। अब ये तो हमको सबको पता है कि प्यार महान होता है, तो दा क्यों लगाया आपने, गलत है। अब स्पेसिफाई कोई बात करे किसी की, द लव ऑफ राधा कृष्णा वाज ग्रेट, उसकी बात करे तो फिर दा आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये रही आपकी स्लाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं दा के नेक्स्ट रूल। सो यू होप, आई होप you enjoy the specify rule of the definite article the, because really that was amazing rules, and you have to understand each and everything in a clear manner. If you don't get it the point, if you have any of the queries, then you can ask in the comment box, I will reply you. If you have any of the queries, then must ask here, I reply each and every question of yours, because I'm here for your help. Okay, next one is 4. The next word we have to, and the next concept we have to discuss, दा इज यूज्ड। अब सीधा लिख दिया मैंने, यूज्ड विथ, दा इज यूज्ड लिख लेना, यूज्ड विथ सच वर्ड, कुछ वर्ड के साथ दा यूज होता है, जैसे कि फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम, फॉलोइंग एंड प्रीवियस। ये जो मैंने वर्ड लिखे, ये जो वर्ड, इनके साथ दा यूज होता है, इनको रट लो, दैट्स ओके, इनको रट लो। मैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई विल extract each and every point from there and just right now teaching you. Okay, so you have to follow this. Here the example number 1, you have to remember the last bench, last word is always followed by the, that's why it is final लिखा हुआ है, फर्स्ट लास्ट जितने भी वर्ड है वो फॉलो होते हैं। दिस इज ओनली शन वी हैव, देखिए ओनली इज द वर्ड दैट इज फॉलो बाय द, ये लिखा ओनली इज द वर्ड दैट इज फॉलो बाय द, इसलिए गलत है, यहां पे दा लगा दो। सी इज इन द नेक्स्ट रोड, नेक्स्ट के साथ दा आता है, दैट्स व्हाई दिस इज राइट। ओके, सो दिस इज द सिंपल रूल वी हैव टू डिस्कस। सो यू हैव टू जस्ट लर्न दीज वर्ड, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम एंड फॉलोइंग एंड प्रीवियस। से फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव रिमेंबर वी हैव मेट द प्रीवियस डे, हाँ या, सो दा क्यों लगा द प्रीवियस डे, बिकॉज प्रीवियस डे की बात कर रहा था, और प्रीवियस डे के साथ आपका, प्रीवियस के साथ आपका दा आता है। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट चलते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस कंसेप्ट नंबर 5th। कंसेप्ट नंबर 5th इज द अमेजिंग अगेन, एंड वी हैव टू डिस्कस दिस वन। ओके, with da is used with, sorry, da is used, da is used with, क्या यार ये क्या ही करता है, da is used with common noun when that noun represents the whole class, very important। जब आपका कॉमन नाउन, जानते हो ना कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि वो पूरी क्लास को, कास्ट एंड क्लास को बताए, उस जैसे और भी हैं आपको ये बताए, तो कॉमन नाउन आपका वो कहलाता है। कॉमन नाउन का, अब सर कॉमन नाउन जब भी आएगा और होल कास्ट एंड क्लास को बताएगा, सो यू हैव टू रिमेंबर वहां पे दा का यूज करना है। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब बताइए, वो बता रहा है जो कुत्ता होता है बहुत ही वफादार जानवर होता है, तो पूरी क्लास की बात कर दी यहाँ पे, एक अकेले कुत्ते की बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास की बात कर दी। और व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, देन यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज टेक आर्टिकल द, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, समझ में आया कि यहाँ पे आपका दा आना चाहिए, तभी ये सही होगा, अदरवाइज आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द एलिफेंट, लिखा है आपका, लिखा है द एलिफेंट हैज अ रिमार्केबल मेमोरी। एलिफेंट या
ये क्या हो जाता है भाई। लिखा द एलिफेंट हैज अ रिमार्केबल मेमोरी। अब एलिफेंट की अकेली तारीफ कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? एलिफेंट की तारीफ कर रहा है यहाँ पर। तो अब एलिफेंट की बात कर रहा है कि रिमार्केबल स्टोरी होती है और होल क्लास को बता रहा है, दैट्स व्हाई ये राइट है। बात आई समझ में? यानी कि जब पूरी क्लास को बात करे, जैसे कि द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यानी कि वो बात करे पूरी कम्युनिटी की, पूरे कॉमन नाउन की, जाति की, पूरे एलिफेंट की, पूरे वोल्फ की, किसी की भी बात करे तो आपको वहां दा लगाना है। दैट्स ओके। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी concept number 6 with article the is used with such nouns as earth, moon, sun, sky. Very important this concept, because most of the student is always confused that sir article the is not used with such of the word because these are proper noun. They make excuses, these are proper noun, but no, they are not proper noun. They are the only one in the universe. So that's why we have to use the article, definite article, the earth, the moon, the sun, the sky. So please make sure that you have understood this point. If you have any of the problems, then ask me in comment. Otherwise there's no problem, because this is simple rule. The earth, the moon, the sun, the sky, you have to use article the. That's all. This is finished. Okay, so we have to use we could see the moon. देखिए द मून के साथ दा लगाए, ऑब्वियसली सही है। इन स्काई यहाँ पे क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए। अब तो आएगा नहीं, दैट्स व्हाई सही हो जाता है। ओके, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देखिए सन के साथ दा लगाए, सही है, लेकिन यहाँ अर्थ के साथ दा नहीं लगा ना, इसलिए ये गलत है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 6 वी हैव डिस्कस, एंड really this is amazing point. Okay, now the point number 7, this is the most important point, and you have obviously you can learn, or you have learned in your childhood such type of the rules your master ji taught you about it. Okay, लिखा हुआ है, पढ़िए। द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ, इनके नाम आए जब, रिवर का नाम, सी एंड ओशियन का नाम, माउंटेन रेंजेस का नाम, होली बुक्स का नाम, ट्रेन्स का नाम, शिप का नेम, एरोप्लेन का नेम, आपका न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नेम, या फिर डायरेक्शन का नेम, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, एम्पायर का नाम आ जाए, होटल, सिनेमा हॉल्स, इन सब के अगर नाम आते हैं तो आर्टिकल द हमको यूज करना है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। तो ये हमें याद रखना है अगर इनके नाम आते हैं। अब सर कैसे? सबसे पहले एक एक का एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, डोंट वरी। लिखा है नेम ऑफ रिवर, रिवर का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि द गंगा, ठीक है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कावेरी, द गोदावरी, महानदी, ये सबके साथ द आएगा। सी के साथ द अरेबियन सी, ठीक है, लिख लो एग्जांपल, एक एक सबके लिखा देता हूं। द अरेबियन सी, ये भी सही है। लिखा है ओशियन के साथ द इंडियन ओशियन। ओके, द इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन, या फिर द आपका अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट क्या? माउंटेन रेंजेस। इसका सुनो, देखिए मैं बता दूं माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं। पहले ये सीख लो, द कंटिन्यूएशन ऑफ द माउंटेन्स। ये ऐसे बहुत सारे माउंटेन का मिक्सचर ही माउंटेन रेंज कहलाता है। और अगर माउंटेन अकेला बर्ड आता है, ध्यान से सुनना, माउंटेन अकेला बर्ड आता है, मैं बताता हूं इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जरूरी है यार इसको बताना, ठीक है, मैं समझता हूं इसको बताना बहुत जरूरी है। मैंने बात की माउंटेन की, अब देखिए ध्यान से, अगर माउंटेन सिंगल में आता है, सिंगुलर, तो फिर आर्टिकल द नहीं आएगा। अगर माउंटेन रेंजेस आता है प्लूरल में, यानी कि माउंटेन के साथ रेंजेस लग जाए तो प्लूरल हो जाएगा। माउंटेन रेंजेस बर्ड आता है तो फिर द आएगा। अब सर समझाइए हमें, जैसे कि हमारे इंडिया में एक माउंटेन है द नमचा बरवा, नमचा बरवा, द नमचा बरवा, तो ये गलत है, बिकॉज एक अकेले माउंटेन के साथ द नहीं आता। द माउंट किलिमंजारो, साउथ अफ्रीका में सॉरी, किलिमंजारो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये माउंटेन अकेला है। अब लेकिन माउंटेन रेंजेस क्या सर? बहुत सारे माउंटेन के मिक्सचर बताता हूँ, चूंकि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, उसका भी ज्ञान दे देता हूँ, लेकिन आप लोग सर्च कर लेना, ओके, नो प्रॉब्लम। सर्च का मतलब कि देख लेना थोड़ा एटलस पे। जैसे कि द हिमालय, क्या? द हिमालयाज, सही होगा। जैसे कि द एंडीज, सही होगा। द रॉकीज, एंडीज कहां पर? साउथ अमेरिका में। द रॉकीज कहां पर है? आपकी नॉर्थ अमेरिका में। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जितनी भी दुनिया की रेंजेस है, और की जितना भी आपके रेंजेस के नाम आ जाएंगे, ठीक है, उन सब में दा आ जाएगा। तो आप जितनी भी रेंजेस उनके साथ दा आते हैं और इनके साथ नहीं आते, जैसे कि आपके माउंटेन है। लेकिन और एक बात और, पीक के साथ भी दा नहीं आता। माउंटेन पीक हो,
उसके साथ भी दा नहीं आता। इसको नोट कर लेना। मैं इसको आपका इसको रफ कर कर इसका एग्जांपल देता हूं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? मैं रफ कर कर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि किस प्रकार से। इसको रफ कर देता हूं ऊपर ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ये रफ कर देता हूं। देखिए क्या बताया मैंने, जैसे कि हम देते हैं एग्जांपल, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। इसका बताइए मुझे, हिमालयास। देखिए हिमालयास लिखा है, माउंटेन रेंज है, दा लगा है, सही है। लेकिन अगर आप बात करो माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये पीक है, आपको पता होना चाहिए इतना ज्ञान, तो इसके साथ दा नहीं आएगा, क्योंकि पीक के साथ दा नहीं आता। पीक क्या होती है? जैसे कि माउंटेन रेंजेस है और इसी में सबसे ऊंची जो चोटी कहलाती है उसी को आप पीक बोलते हो। ये पीक कहलाती है और ये पूरा रेंजेस कहलाता है और अकेला ये माउंटेन कहलाता है। तो ये होता है फर्क, पीक, माउंटेन, माउंटेन रेंजेस में दा कब आना है ये भी बता दिया। इससे बेहतर यार मैं नहीं समझता कि आपको अब समझ में आने वाला है। तो रफ करते हैं और चलते हैं आगे। मैंने बता दिया माउंटेन रेंजेस के साथ किस प्रकार से आपका आएगा और होप यू विल एंजॉय इट। नेक्स्ट हमने देखा माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स जैसे कि द कुरान, जैसे कि द गीता, ठीक है, द गीता, तो इन सबके साथ दा आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ट्रेन वगैरह, अरे द शताब्दी एक्सप्रेस, हम यही लेंगे, हमारे इंडिया की द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो ट्रेन के नाम आ जाएंगे तो भी दा आएगा। आगे लिखा हुआ है शिप के नेम, तो भाई इतने सारे मतलब कि शिप के नेम होते हैं, उसका नाम लिख लो अगर आपको आता है तो उसमें भी आ जाएगा। जैसे कि द कनिष्का, ठीक है, कनिष्क, ये शिप का नेम है, द कनिष्क, ठीक है, तो कनिष्क आ जाएगा। अब एरोप्लेन के नेम, तो इतने सारे आपके एरोप्लेन के नेम है, द एयर इंडिया, एयरक्राफ्ट, जो भी हो, ठीक है, उसका नाम लिख लेना, नो प्रॉब्लम। आगे आता है आपका न्यूज़पेपर के नेम, द हिंदू, द मराठा, जितने भी। नेक्स्ट लिखा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, जैसे कि द ताजमहल, जैसे कि द कुतुब मीनार, ठीक है, द कुतुब मीनार, ठीक है। तो ये आपके जितने भी हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ आ जाता है। आगे लिखा हुआ है द डायरेक्शन के साथ, जैसे कि द ईस्ट, जैसे कि द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के साथ आता है। समझ में आया? तो ये आपकी डायरेक्शन के साथ हो गया। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। इसको सुनो, अब मैं रफ करता हूं, होप लिख लिया होगा, और इसको मैं रफ कर देता हूं और सुपरलेटिव डिग्री की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है, देखिए 3 प्रकार की डिग्री होती हैं आपकी, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। व्हेन वी कम ऑन दिस टॉपिक देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है आपका जिसके अंत में आपका EST लगा हो, ये लिख लो, EST लगा हो, EST या फिर ST लगा हो। देखिए बताता हूँ, EST लगा हो या ST लगा हो, जिस वर्ड के अंत में, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए ध्यान से, और एग्जाम्पल को आप मुझे बताना ये सही है कि नहीं। She is tallest girl in the क्लास। देखिए क्लास कॉमन नाउन था इसलिए दा आया ऑब्वियसली। अब टॉलेस्ट आपका देखिए EST लगा है ना, यही सुपरलेटिव डिग्री। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है जिसमें EST लगा हो। अब यहाँ EST लगा हुआ है आपका, तो यहाँ दा आना चाहिए, दैट्स व्हाई ये गलत है। बात आ गई समझ में? एग्जाम्पल लिख लो, उसको लिख लो सी इज दा लगा के लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप बोलते हो ही इज द एल्डेस्ट सन, ठीक है। अब दा क्यों आया? बिकॉज EST लिखा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आपका आता है उसके साथ दा आता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एम्पायर का मतलब होता है द मुगल, जैसे द मुगल, हाँ, जैसे कि द आपका गुप्ता, द मगध, ये सब उसके साथ आता है। होटल के साथ, होटल के नाम जितने भी होते हैं आपके, द ताज होटल, ठीक है ना, द ताज होटल, उसका नाम आया भी तो लिख दिया। सिनेमा हॉल, जितने भी आपके सिनेमा हॉल के नाम रहते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी टाकीज के नाम है, सिनेमा हॉल्स वगैरह, उन सबके साथ दा आता है। सो दैट्स ओके। होप मैं क्या करता हूँ, वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं करता हूँ, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बचे हुए जो दा के
रूल है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी रहती है, चूंकि नहीं रह गई होगी क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझा दिया है। ओके, अगर रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूंगा। और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें। मैंने बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने फिर से बता दूं कि ये कोर्स आपका वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है आपके यूट्यूब पर, अमेजिंग है। अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो, नाउन से फॉलो कर रहे हो, आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी अमेजिंग होने वाली है, यू कांट इमेजिन यार। ओके, मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है, इसको पढ़ने के बाद, इस कोर्स को पढ़ने के बाद, यूट्यूब के इस कोर्स को पढ़ने के बाद, पीडीए क्लासेस पर जो मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश का जीरो टू हीरो वाला कोर्स, किसी भी एग्जाम के किसी भी पुराने ओल्ड PYQs लगा लेना। अगर ना बने तब मुझे कहना, तब मैं बताऊंगा। दिस इज माय चैलेंज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।